आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के On behalf of all faculty members, सभी संकाय staff सदस्यों, members, छात्रों और पूरे students, आईआईएम and the entire IIM Rohtak community, आईआईएम रोहतक I समुदाय की ओर से extend मुझे a परम warm पावन जी welcome to दलाई लामा और His करुणा Holiness एवं Dalai प्रज्ञा के Lama. साथ चुनौतियों का सामना करना Sir, विषय पर it's an indeed ऑनलाइन a माध्यम great में honor शामिल and a होने वाले privilege सभी लोगों का स्वागत to करते हुए have मुझे you खुशी हो and रही है। host you in our community and to talk परम about पावन जी, a very आज यहाँ important आपके topic साथ होना of एक facing सम्मान और सौभाग्य की challenges बात है। through मेरा मानना कि passion आज and की यह wisdom. बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है As और all of सत्र us में भाग know, लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति in the पर last इसका बहुत decade, प्रभाव पड़ सकता है। we have found ourselves एक in आवश्यक more प्रश्न जो strife आज हमारे than ever सामने है कि before वह in यही our है कि life. हम अपने आसपास दिखाई देने On वाले one इतने hand, सारे we have संघर्षों और निश्चितताओं multiple का सबसे facilities, अच्छा जवाब कैसे challenges, दे सकते comforts हैं। available to us, सोशल and मीडिया yet और सूचना we युग ने face हमारे ड्राइंग रूम challenges में of दूर दराज time, के संघर्ष को ला challenges of दिया है। having quality discussions, challenges of having better quality of life. I do not know whether technological innovations, mobile communication and computing devices have made our lives better or आतंक के worse. खिलाफ युद्ध विश्व स्तर पर In स्पष्ट रूप से addition, असहनीय हिंसा, at global गरीबी, level, conflict, भेदभाव, परिवेश का conflict between क्षरण countries, और हमारे अपने conflict निजी between people जीवन में has only चुनौतियां grown. सभी हमें And at the आश्चर्यचकित same करती हैं। time, the इस तरह 180 की degree, सामूहिक पीड़ा there is a होने का स्रोत क्या great है जो degree of जानते हैं कि sense असुरता को of बढ़ाती है। entitlement and feeling of victimhood अन्याय among और us. हिंसा मनुष्य So के रूप में while क्या हम we वास्तव have a में भय, section of ईर्ष्या, society लोभ और घृणा की which प्रकृति is को समझते हैं? deprived and is क्या हम suffering, is स्नेह, conflicted प्रेम और दया की and is प्रकृति की facing सराहना कर strife, सकते हैं? there क्या is हम another अपने section of आसपास के society लोगों का करुणा which और has all ज्ञान the की comforts से available to तरोताजा them कर सकते and हैं? yet are feeling a sense of victimization? This conflict in society where the underprivileged, the suffering, the people who have deprivation तो आज do देखें not कि see ऐसे समाज में any लोग high बहुत ज़्यादा level of, परेशानियों uh, से of, of compassion गुजर or रहे हैं, tolerance तो ऐसे or समय में some उनको comfort. On the एक other उच्च hand, स्तर we की have people who are सहिष्णुता living comfortable की lives प्राप्ति नहीं and होती, yet have करुणा a की sense of प्राप्ति नहीं हो रही entitlement है। and this is a dilemma that we are experiencing today. I hope and pray that through तो the words मेरी of His उम्मीद है Holiness, और we प्रार्थना would भी be है able to कि enrich परम our पावन lives. If not, at least we कि would be आपके able to शब्दों से ameliorate निश्चित रूप से ourselves. If हमको not, एक we would at ज्ञान least की start प्राप्ति thinking होगी differently about the और way कम we से see the कम world. आपको सुनकर के हम लोगों I के would ये like सोच to विचार welcome उसमें again बदलाव आएगा। His Holiness मैं to परम our पावन जी के community. We're यहाँ really स्वागत करना delighted and चाहता honored, हूँ sir. Thank you very और हमें much. खुशी है Thank कि you on आपको देख behalf कर of के हमें all our खुशी हो रही faculty, है और आपका students, बहुत बहुत staff, and धन्यवाद। community और हम members. अपने Welcome, आईआईएम sir. की तरफ से सभी की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है। So indeed, I am extremely happy having this opportunity. तो आज जो अवसर प्राप्त हुआ है, My आज हमें अपना उद्बोधन देने के लिए जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, अपने भारतीय मित्रों के साथ बातचीत करने का समय प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि भारत जो अगर भारत और चीन को देखें तो चीन के बाद भारत सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र है। तो हमारी जो भारत की जो परंपरा रही है, हजारों वर्ष प्राचीन परंपरा, अहिंसा की परंपरा, वो करुणा के साथ वो भली भूत यहाँ पर स्थिति है। और हम विभिन्न कारणों से हम जान सकते हैं, देख सकते हैं कि इस राष्ट्र में, इस देश में विभिन्न देश की, विश्व की अलग अलग परंपराएं साथ साथ रहती हैं और अहिंसा के माध्यम से साथ साथ रहती हैं। सभी धर्म परंपराएं यहाँ पर एक साथ खुशी खुशी से रहती हैं। India's 1,000-year-old tolerant. तो भारत की हजारों वर्ष प्राचीन सभ्यता, अहिंसा, करुणा
So सहिष्णुता की भावना, ये भारत में भली भांति now you स्थापित है। already have the what's a tradition or even practice. तो आपकी ये परंपरा है, परंपरा ही नहीं, ये आपका एक अभ्यास भी है। आप जो धार्मिक सहिष्णुता का अभ्यास करते हैं, भारत के लोग जो इसका अभ्यास करते हैं, जहाँ करना संभव है, Create some तो ये problem. बहुत ही अच्छी बात है। That's लेकिन understandable. कभी कभी But कुछ basically, घटनाएं घटित होती हैं, this कुछ लोग ऐसे अकुशल कर्म करते हैं, 1,000-year-old कुछ on the मुश्किल basis हालात of पैदा this करते हैं। तो ये तो religious एक harmony. प्रकार से सभी समाज Very में good. होते हैं। Very और good. मूल रूप से देखा जाए तो भारत So में now, जहाँ तक last धार्मिक few सद्भाव decades, है, वो भली भांति स्थापित है। to get my way, Lochuta, few तो decades पिछले कुछ दशकों में अगर हम देखें, is my home. I भारत really मेरा trust गृह है, मेरा घर है। India, people of India, और including मैं भारत के लोगों से religious, बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। यहाँ तक कि 1,000-year-old भारत के tradition लोग इसके साथ साथ धार्मिक लोग still भी, जो कि very much इनकी प्राचीन uh, जो परंपरा है, alive, kept. जिन्होंने अब इस So परंपरा को जीवित रखा है। I always telling people, religious religious harmony possible. India is example. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि All major world भारत में धार्मिक सद्भावना together. वो संभव है। यहाँ पर सभी धर्म Some of the परंपराएं scholar, साथ साथ रहती हैं। some philosophical views, some तो more जहाँ तक complicated दार्शनिकों की बात sort of करें, matter, तो some अलग अलग विचारधाराएं हैं, scholar level, अलग अलग विचार some हैं। debate over 1,000 years. और जहाँ तक दार्शनिक स्तर पर But देखें, basically, तो पिछले हजारों वर्षों से यहाँ शास्त्रार्थ होते आए हैं, तर्क होते people आए हैं, from different religious tradition, uh, और अलग अलग परंपराओं के लोग यहाँ पर रहते आए हैं। so किसी को कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। I believe India can make significant contribution on this planet religious harmony. तो मैं मानता हूँ कि भारत और भारत के लोग इस पृथ्वी पर धार्मिक And then, सद्भाव के लिए एक अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। since I came here, one way as a refugee, one way तो जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, एक तो एक अगर पक्ष को देखा जाए तो एक शरणार्थी के रूप में, दूसरा पक्ष से देखा जाए तो भारत का एक मेहमान के रूप में मैं यहाँ पर आया हूँ। when I talk religious harmony, I तो always जब हम mention धार्मिक India सद्भाव as की an बात example, करते हैं, living example. तो मैं भारत को हमेशा एक जीवित उदाहरण के रूप में संज्ञा देता हूँ। So now, uh, oh, now India, modern India, in education field, people तो जहाँ तक आधुनिक भारत को देखें, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें, तो बहुत ज़्यादा and science and these things. जो कि Now we must जो भौतिक जिंदगी है उसकी We तरफ must ध्यान दे pay रहे हैं, more जो attention भौतिक विकास है in उसकी तरफ ध्यान दे education. रहे हैं। तो हमें, मेरा कहना है कि हमें 1,000-year जो old शिक्षा है उसमें ध्यान देना चाहिए। हजारों वर्ष Ahimsa, प्राचीन जो Karuna, जो भारत की जो एक सभ्यता है, secular अहिंसा basis, करुणा का सिद्धांत है, धर्मनिरपेक्ष आधार पर ये सिद्धांत है, इसके प्रति school, हमें ध्यान देना चाहिए। university. तो I भारत के स्कूल, hope विश्वविद्यालय, must और pay मेरी more ऐसी उम्मीद attention. है कि भारत के जो 1,000 शिक्षण year संस्थान हैं India's उनको ध्यान tradition. देना चाहिए। These should be living tradition.
और ये जो जो परंपराएं हैं I वो always जीवित say परंपराएं रहें। the previous century, Mahatma Gandhi ji तो आप देखें कि पिछली शताब्दी में ahimsa अर्थात 20वीं शताब्दी में practice ahimsa, महात्मा गांधी जी ने अहिंसा सिद्धांत का भी freedom पालन struggle. किया और Then भारत later, की जो स्वतंत्रता many के लिए people जो संघर्ष in था South उसमें भी Africa अहिंसात्मक रूप अपनाया। उसके अलावा अन्य देशों में भी देखें, आप साउथ and अफ्रीका में देखें, must say many दक्षिण countries अफ्रीका में देखें, really follow Mahatma Gandhi और ji's इसके अलावा भी भारत की और non-violent महात्मा गांधी जी ने pursuit जो started. जो अहिंसा का Now जो रास्ता अपनाया the उसको time come since world उसको लोगों ने अन्य देशों ने भी is अपनाया lacking है, moral principle. क्योंकि आज के समय में लोग नैतिकता को खो रहे हैं, India नैतिकता को have भूल रहे हैं। potential to तो offer ऐसे समय में world भारत में ऐसी क्षमता है karuna, कि दुनिया को करुणा के संदेश को दे ahimsa, सकें, करुणा के Mahatma संदेश Gandhi को ji's फैला ideology. सकें। Now on तो top of that, modern India should pay more attention about और karuna. आधुनिक भारत को या भारत के लोगों को Firstly, करुणा पर बहुत ज़्यादा ध्यान in देना our चाहिए, own उसको बढ़ाने का प्रयास or करना younger चाहिए। generation, और among the उदाहरण के रूप students, में जैसे कहें कि हमारी जो आधुनिक पीढ़ी है secular way, और उसमें भी जो छात्र छात्राएं हैं nothing उनको to भी do धर्मनिरपेक्ष होकर के but warm-heartedness. सोचना चाहिए। उसमें कोई बौद्ध धर्म या कोई अन्य धर्म को मानने की आवश्यकता नहीं है। Irrespective, whether believer, और non-believer, तो धर्म ये दूसरा पक्ष है, चाहे आप किसी परंपरा को मानते हों या न मानते हों, लेकिन we all हम come सभी from लोग our mother, जो मानव all हैं, grown up मनुष्य हैं, with हम mother's सभी affection. अपनी माँ से आए हैं, हम अपनी That's माँ के basically प्रेम से, nature. करुणा से उत्पन्न हुए हैं। तो ये हमारी Therefore, स्वाभाविक प्रकृति है। now, in Indian education, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा पद्धति है, about उसमें karuna, कुछ जो हमारे करुणा, मैत्री इन विषयों के बारे not में based on ध्यान देने की religion, आवश्यकता है। but simply तो ऐसा नहीं है कि वो human nature. धर्म पर आधारित हो, And we can धर्म see को आगे लेकर के चलें, ऐसा हो, through ऐसा नहीं centuries, है कि मानव की जो a lot of प्रकृति है, world मानव का powers स्वभाव है, वो साथ रहे। are fighting तो पिछली शताब्दियों में देखें and तो बहुत ज़्यादा lot of झगड़े money, हुए, बहुत ज़्यादा making अत्याचार weapons. हुए, बहुत These सारे are जो materialistic हथियारों को, औजारों को thinking. बनाने में Now इस धन का India उपयोग हुआ। तो ये एक uh, भौतिकवादी we should विचारधारा है। uh, revive our own 1,000-year-old tradition. तो हमें अपनी हजारों वर्ष प्राचीन जो सिद्धांत है, करुणा और अहिंसा का हमारा जो सिद्धांत है, उसको in पुनरुद्धार education, करने की आवश्यकता है। We should. I often use it telling the और अक्सर मैं कहता हूँ कि Indian जो education शिक्षा पद्धति है should combine और जो आधुनिक शिक्षा पद्धति modern education उसमें including प्राचीन science विद्या और आधुनिक and विद्या जैसे कि 1,000-year-old विज्ञान our own tradition और karuna हजारों वर्ष प्राचीन विद्या करुणा, उसको जोड़ना चाहिए, India अहिंसा को जोड़ना चाहिए। potential to combine. और मैं मानता हूँ कि भारत में इन दोनों को साथ रखने की एक क्षमता है। So as now India, my home, I noticed तो जैसा कि भारत को मैं अपना still has देश this मानता हूँ, अपना घर मानता हूँ, और तो now मैंने देखा है कि भारत में अभी भी ये क्षमताएं हैं। should make भारत इन effort. प्राचीन How और we, आधुनिक दोनों शिक्षाओं को, दोनों विद्याओं को जोड़ सकता है। uh, और मैं विचार भी कर रहा हूँ next my visit, कि अगले हमारी जब I am यात्रा going हो, to दिल्ली की यात्रा हो, meeting तो मैं some इसके बारे में विचार professors करने जा रहा हूँ। of कुछ Jawaharlal प्रोफेसर से Nehru मिलूं, University. जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हुई, अन्य विश्वविद्यालय हुए, उनके प्रोफेसर के साथ How to combine मुलाकात करने की कोशिश modern करूँगा। education
और knowledge, यही including कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से and then आधुनिक शिक्षा we have to और know प्राचीन शिक्षा ahimsa. और भारत के जो मूलभूत सिद्धांत करुणा है उनको कैसे साथ साथ जोड़ा जा सके। While I, as a refugee, as I already mentioned, as a guest of Indian government, I really तो जैसा see कि great मैं potential भारत का एक अतिथि हूँ, of रिफ्यूजी India's हूँ, tradition. तो फिर भी इस सब के दौरान भी मैंने पाया कि भारत की जो सभ्यता है, जो Ahimsa, क्षमता है, बहुत ही Karuna. गंभीर है और अहिंसा के साथ करुणा को जोड़ा जा सकता है। Now, last, you see, few decades, I have many opportunity to discuss with brain specialist. और पिछले कई दशकों से मैं वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करते आया हूँ, बातचीत करते आया हूँ और उन सब ने एक प्रकार से That really, जो हमारी करुणा है, मैत्री है, उसको उन्होंने पसंद किया है और कहा है कि इसके माध्यम से हमारे साथ में एक हमारे मन में एक खुशी की उत्पत्ति होती है। और जहाँ तक आप क्रोध के बारे में सोचें, भय के बारे में सोचें, तो ये हमारे मन के लिए या मस्तिष्क के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो आज के समय में बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं तो वो एक रुचि दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से and in order to build peaceful world, happy world, और कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक करुणा की उत्पत्ति हो सके, विश्व में शांति की स्थापित हो सके। तो उसके लिए हमें औजारों का, हथियारों की अब आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अगर वास्तव में खुशी के लिए किसी औजार की, सुख के लिए किसी औजार की आवश्यकता है तो वो करुणा और मैत्री की है, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है वो करुणामय है। हम लोग जैसे कि शेर और चीते उनकी तरह एक प्रकार से क्रोधित या रौद्र नहीं है। तो हम लोगों की जो स्थिति या फिर हमारी जो आदत है वो करुणामय है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत प्राचीन विद्या और आधुनिक जो शिक्षा इन दोनों को साथ जोड़ सकता है और इसको आधुनिक तरीके से, उसको एक धर्मनिरपेक्ष की भावना से इन दोनों को जोड़ सकता है। ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब इसके बाद अच्छा होगा कि आप प्रश्न उत्तर करें, उसके साथ साथ बहुत सारी जो जिज्ञासा है आपकी वो उनका समाधान होगा। तो परम पावन जी, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे लोग उस आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। I think you have mentioned something very important about तो जैसा कि परम पावन जी आपने जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी उसके बारे में आपने अभी कहा है, students in a educational institution must have, तो जहाँ तक बच्चों की बात करें तो उनका एक वैज्ञानिक टेम्पर होना चाहिए। और इसके अलावा अलग अलग संस्थानों में उसमें भी धार्मिक विभाग हैं, जैसे कि और प्राचीन के समय में देखें कि नालंदा को देखें, तक्षशिला को देखें, तो उसमें सिद्धांतों को, धर्मों का अध्ययन किया जाता था। तो वहाँ पर आस्तिक तरीके से अध्ययन किया करते लोग, ईश्वर इत्या को मानते थे। तो इसके बाद में लोगों ने विचार बदला कि अगर साइंस को पढ़ते हो तो फिर आप धार्मिक नहीं हो सकते, ऐसा विचार आया है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या विज्ञान और धर्म दोनों साथ साथ जा सकते हैं, एक साथ चल सकते हैं? क्योंकि जैसा कि मेरा प्रश्न है, नई पीढ़ी से वैज्ञानिक प्रगति की अपेक्षा की जाती है। तो प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि एक अच्छे समाज के लिए विज्ञान और धर्म के साथ साथ चलने की जरूरत है? तो
इस भारत देश में विश्व के सभी जो धार्मिक essence जो जितने भी धर्म हैं वो सभी यहाँ पर रहते हैं। तो और सभी धर्मों में in एक philosophy. एक सार है जिसे There हम are करुणा different कहते हैं। views. और दार्शनिक क्षेत्र में देखें That is तो why अलग अलग सिद्धांत होते हैं, अलग अलग दर्शन Karuna. होते हैं। तो ये उपाय हैं कि In इनके some माध्यम cases, से करुणा को किस प्रकार से रखा जा सकता है। religious belief is helping to strengthen Karuna. But you see, uh, religion is religion. Now India तो धर्म होता है। the concept of secular. और भारत में आप देखें कि जो धर्मनिरपेक्ष की भावना है वो भारत में स्थापित है। उसमें कोई धर्म का पालन करने की या धर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं है। Religion should be a method to further तो promote जो धर्म है वो करुणा को उत्पाद करने के लिए, विकसित करने के लिए और बढ़ाने के लिए एक उपाय के रूप में होना चाहिए। bring the concept of we and they. और जहाँ तक धर्म के माध्यम से देखें तो धर्म की वजह से मैं और वे इस प्रकार की विचारधारा आती है। तो इस प्रकार के विचारधारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इस प्रकार से चिंतनीय है। अगर on this side. मैं और मेरा हर विचार चलेगा तो वो उचित नहीं रहता है। इसकी वजह से फिर ये मेरा धर्म, उसका धर्म, इन बातों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। एक प्रकार से झगड़े जैसे होने लगते हैं। Believe very strong. तो भारत में जहाँ तक लोगों की धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। Now we should और धार्मिक सद्भाव भी भारत में स्थापित pay है। more attention in our education field. और इसके बजाय हमें हमारी जो शिक्षा है Dharma, तो Karuna, शिक्षा में compassion. हमें जो धर्म के सार हैं, जो करुणा और मैत्री है, उसके बारे में बताना चाहिए। जो सार्वभौमिक करुणा है वो किस प्रकार से कार्य कर सके, वो किस प्रकार से लाभदायक हो सके। Thank you, His Holiness. Our next question is from our Dean Academic. तो परम पावन जी, अगला प्रश्न हमारे डीन एकेडमिक प्रोफेसर कौस्तभ घोष की तरफ से है। We find new generation has a sense of entitlement. तो परम पावन जी, एक नई पीढ़ी में अधिकार की भावना होती है, क्योंकि वे संसाधनों की पीढ़ी, एक प्रकार सब संस्कारों की पीढ़ी है। Continuously demanding from क्या हर किसी से लगातार मांग करना बुद्धिमानी है या अच्छी मांग है, अच्छी बात है? Now, oh, you see, extreme desire, and I want this, I want that. तो जहाँ तक आपकी इच्छा की बात करें I think तो हमारी चरम इच्छाएं होती हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है, about जो world सोच विचार होती है, and वो our बहुत ही aim, संकुचित होती है। our goal, हमें विश्व के बारे में सोचना चाहिए, world. हमें हमारे उद्देश्य के बारे में, हमारा उद्देश्य एक शांतिमय विश्व की स्थापना हो, इस प्रकार का विचार होना चाहिए। Pay more attention about Karuna. So, अगर हम शांतिमय विश्व की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें करुणा की आवश्यकता है, और करुणा के माध्यम से ही विश्व में शांति आ सकती है। इस प्रकार का हमारा सोच होना चाहिए, विचार होना चाहिए। I think we can reduce this without a proper reason. Too much desire. I want this. I तो want. मैं मानता हूँ कि बिना इन जो हमारी जो आकांक्षाएं हैं तो इनको हम कम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जो मांग रहती है उसको कम किया जा सकता है। I think this is a very interesting thought. I think it is probably useful to focus on things that you तो don't परम need. पावन, जैसा कि आपने कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है।
rather than what they तो want, अगर लोग we सोचने are लगें fantastic कि world उनको they क्या live in. छोड़ना है, Karuna इसके is बजाय कि वो passion. क्या प्राप्त करना Giving up, चाहते I हैं, think, तो शायद is probably करुणा और मैत्री ज़्यादा something स्थापित for हो our new सकती है generation to consider. Sir, our next और question नई is पीढ़ी from के लिए बहुत ही Professor S.K. लाभदायक हो Pandey, who सकते is our हैं। Dean Research. तो अगला प्रश्न हमारे प्रोफेसर एस के पांडे जो कि डीन रिसर्च हैं, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो नई पीढ़ी अपने दोस्तों और परिवार में अवसाद के बढ़ते मामलों से कैसे निपटती है? As I already mentioned, too much materialistic thinking. तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा बहुत ज़्यादा जो भौतिकवाद के प्रति विचारधारा रहती है, So India's और फिर जो हमारी करुणा और मैत्री इस पर ज़्यादा विचार नहीं रहता है। और भारत की जो करुणा और अहिंसा जो हजारों वर्ष प्राचीन परंपरा है, we human being from mother ये भी एक प्रकार से हमारी प्रकृति है, प्रकृति के अंग हैं। of our life full of compassion. तो हमारा जीवन जो है माँ के सानिध्य में उत्पन्न होता है, तो हमें उसके प्रति ध्यान देना चाहिए। हम उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रकार से प्रखर होना चाहिए। Now number of scientists also now तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो मानते हैं कि जो मन की शांति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या समाज के लिए हो, देश के लिए हो या संपूर्ण विश्व के लिए हो। तो शांतिमय चित्त या करुणा का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। in education field. तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमें शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, करुणा के बारे में और ध्यान देना चाहिए। For our health, for happy तो society, ये केवल धर्म के लिए हो ऐसी बात नहीं है, अपने स्वास्थ्य के लिए, ultimately अपने एक सुखद परिवार के लिए, और फिर जो हमारे अंतिम लक्ष्य कि विश्व शांतिमय हो, करुणामय हो, उसके उद्देश्य के लिए इनका हमें अभ्यास करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि हम कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसको शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, ना कि धर्मों के माध्यम से। world. तो हम लोग जिस विश्व में रहते हैं, ये हम मनुष्यों का विश्व है, मनुष्यों की दुनिया है। तो हम लोगों का उद्देश्य यही हो कि, और हम लोग यहाँ पर जो हैं इसे नहीं है कि दूसरों की हत्या करने के लिए हैं। तो जितना ज़्यादा हमारे दूसरों के लिए विचारधारा होगी, दूसरों के लिए सोच विचार होगी, जितना ज़्यादा हम मनुष्यों के बारे में सोचेंगे I am trying उतना ही लाभदायक होगा। the sense तो of मैं oneness of 7 billion. तो मैं जहाँ तक मेरी जो प्रतिबद्धता है कि जो 7 अरब के आसपास लोग हैं उनके लिए मैं कार्य कर सकूं। तो इस दुनिया में अलग अलग राष्ट्र हैं, अलग अलग उनके रंग हैं, अलग अलग धर्म हैं, ये द्वितीय स्तर की बातें हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते हमें सुखी पूर्वक रहने की ज़रूरत है, खुशी खुशी रहने की आवश्यकता है। It's the personal matter. और जहाँ तक धर्म की बात करें तो धर्म तो अपने व्यक्तिगत व्यवहार हैं। अगला प्रश्न मिस लुबना मलिक, रिसर्च स्कॉलर। क्या तो इनका प्रश्न है, क्या मनुष्य भी पहले से कहीं ज़्यादा अब खुद पर केंद्रित है? वे अन्य जीवित प्राणियों और पर्यावरण के प्रति अधिक दयालु कैसे हो सकते हैं? तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि हम लोगों का जीवन भौतिक जीवन पर आधारित जैसा हो गया है, और मैं कह सकता हूँ कि जहाँ तक शिक्षा, जो भारत की शिक्षा पद्धति है वो पाश्चात्य देश से आई हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा ईश्वर पर आश्रित हैं और मानते हैं कि हम सभी ईश्वर के एक प्रकार से
ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं। that kind of thinking. That's the habit. तो ये हमारी एक आदत बन गई है। We have something different view. तो हम लोगों के अलग अलग, और भारत में अगर देखें तो भारत में लोगों के विचार, उनकी सोच अलग अलग जैसी है। Insect, we always तो भारत में अगर देखें not kill. तो जहाँ तक कीड़े मकोड़े भी हों, जीव जंतु भी हों, उनको हम कभी भी मारने की कोशिश नहीं करते हैं, उनकी हत्या नहीं करते हैं। इस कोशिश करते हैं कि इससे बच सकें। Of Karuna, ahimsa. तो भारत की हजारों वर्ष प्राचीन जो पद्धति करुणा और अहिंसा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज के समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है। Happy world, peaceful world. तो मैं कहता हूँ कि अगर विश्व में अगर शांति की स्थापना करनी है तो भारत की करुणा और जो मैत्री है, करुणा और अहिंसा है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। Okay, now next. तो अगला प्रश्न मिसेस श्वेता सिन्हा का, जो रिसर्च स्कॉलर हैं। Unmute your computer, please. I think तो प्रौद्योगिकी के प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी के निरंतर हस्तक्षेप से मानवीय तत्व समझौता हो रहा है, we human beings और आप संगठनात्मक प्रकृति में ज्ञान और करुणा जैसे गुणों के भविष्य को कैसे देखते हैं? we too much pay material तो कुछ समय के दौरान हमने बहुत ज़्यादा भौतिकवाद और जो प्रौद्योगिकी है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। हमने जो हमारी आंतरिक शांति उस पर ध्यान नहीं दिया। तो जहाँ तक we really can develop peaceful world. तो हम निश्चित रूप से जो करुणा है, मैत्री है, इस पर ध्यान अगर देते हैं तो निश्चित रूप से एक करुणिक संसार के, करुणिक विश्व की स्थापना कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। Everybody's on the mobile phones. What is the future of human interaction in such a situation? Everybody is continuously using तो हर एक कोई आजकल continuously निरंतर मोबाइल का उपयोग कर रहा है, फ़ोन उपयोग कर रहा है और उसके द्वारा वार्ताएं कर रहा है। तो एक दूसरे को बिना देखे एक दूसरे से वार्ताएं कर रहे हैं। तो आप इस परिस्थिति में विश्व को कहाँ पर देखते हैं, कैसी स्थिति में देखते हैं? We just thinking about material तो जो प्राचीन समय में देखें तो केवल और केवल हम भौतिक विकास के बारे में सोचते थे, तो उससे केवल प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती थी। लेकिन अब लोगों ने आंतरिक शांति के बारे में समझ लिया है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जाना है कि जो हमारे 7 अरब के आसपास के लोग हैं, हम सभी को एक साथ इस पृथ्वी पर रहने की ज़रूरत है और एक साथ यहाँ पर रहना है। we have to live together और हम सभी लोगों को यहाँ पर इस छोटी से ग्रह पर साथ साथ रहना है, साथ साथ जीना है, और हमें एक सद्भाव से रहना है, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना है। अगर हम इसको एक अच्छी तरह से विचार करते हैं, अच्छी तरह से सोचते हैं, तो ये एकमात्र रास्ता है। और मैं मानता हूँ कि जो चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ हैं, उसमें परिवर्तन होता है, निरंतर परिवर्तन होता है। लेकिन पिछले कुछ शताब्दियों में, कुछ दशकों में लोगों ने अपनी राष्ट्र, अपने लोग, अपने समाज के बारे में केवल सोच रखी, संकुचित सोच रखी। तो जैसे उदाहरण के रूप में सोवियत संघ के बारे में आप सोचें, उसमें बहुत सारी समस्याएं थीं।
बहुत सारे चैलेंज थे, चुनौतियाँ थीं। Southeast Asian nations तो साउथ ईस्ट एशियन in the past, you see, too much fighting. Now things are changing. One तो अब example, आप देखें तो now जो people from परिस्थितियाँ China बदल रही हैं, and तो उदाहरण के रूप में आप now चाइना के things लोगों को are, देखें, you see, ताइवान के लोगों के बात में देखें, it is what's it, unrealistic. तो एक प्रकार से ये उचित नहीं है कि जैसी वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, It's out to date. तो एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखना उचित नहीं है। ये पुरानी बातें हैं, एक दूसरे पर शत्रुता का भाव रखना पुरानी बातें हैं। तो मैं अपने आप को और पिछले कई वर्षों से एक माध्यमिक मार्ग को लेकर के चल रहा हूँ। तो हमारे तिब्बती भाई बहन और इसके अलावा चीन के भाई बहन, हम सभी को साथ साथ रहना है। So no use हम to fight, kill. तो इसलिए अगर साथ साथ रहना है तो झगड़े करने की आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। Need in order to create happy world, we should तो एक जो कि शांतिमय सुखमय विश्व की स्थापना अगर करना चाहते हैं, तो हमें ये 7 अरब के आसपास लोग, उन सभी को साथ साथ चलने की ज़रूरत है। उनको मित्रता के भावना से हमें देखने की आवश्यकता है। Yes, sir. Prachi Kumar, our MBA student, has a question for you, sir. Hello, Your Holiness. My question is that in the times तो of परम पावन जी की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और शीर्ष पर बने रहने की निरंतर दौड़ के समय में क्या आपको लगता है कि संगठनात्मक स्तर पर भौतिक सफलता के लिए करुणा और इच्छा सह अस्तित्व में हो सकती है? as I mentioned already, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, इससे पहले भी कहा our generation is too much thinking about कि हमारी पहले की जो पीढ़ी थी वो बहुत ज़्यादा भौतिक जीवन पर, भौतिक विकास पर जोर देती थी। more people paying more attention about inner peace. तो आज के समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंतरिक शांति के बारे में, आंतरिक सुख के बारे में ध्यान दे रहे हैं। Peaceful world. और जो कि शांतिमय विश्व की स्थापना कैसे हो उसके बारे में विचार कर रहे हैं। और आज जो वैश्विक तापक्रम की स्थिति है और उसके बारे में भी हमें बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो स्थिति, जो पूरा विश्व, जो परिवर्तन पूरा विश्व इसको झेल रहा है, अलग अलग स्थिति जहाँ पर भी झेल रहा है, तो हमारे राष्ट्र, हमारे, या फिर कहा जाए कि हमारे समुदाय, ये दूर की बात है। हम उससे पहले हमें सब के बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो परिवर्तन जो है उसमें हम सब के ऊपर इसकी छाप पड़ती है। So therefore, तो I'm really hopeful with this reality. Now we should pay more attention about one. तो इन समस्याओं के साथ भी, इन समस्याओं को जब हम सामना कर रहे हैं, तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनके बारे में हमें और ज़्यादा कारुणिक रहने की ज़रूरत है। Society through education. और वो भी एक शिक्षा के माध्यम से, कि शिक्षा के माध्यम से कैसे हम एक कार्मिक रह सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं, और वो भी धर्मनिरपेक्ष की भावना से कैसे रह सकते हैं। To make a significant contribution. और मैं मानता हूँ कि भारत में एक बहुत बड़ा, विश्व के लिए बहुत बड़ा सहयोग देने की क्षमता है, मनुष्यों का हित करने की क्षमता है।
एक बहुत बड़ा अपना रोल, अपनी भूमिका अदा कर सकता है। So the next question is from our BBMBA integrated program, Narsan Boro. तो अगला प्रश्न नरसन बोरो। Thank you, sir. So my question to your holiness is, तो there is परम पावन जी, increasing मेरा conflict प्रश्न है, between people, व्यक्तिगत और personal and संगठनात्मक स्तर पर लोगों के organizational बीच level. संघर्ष बढ़ How रहा do you है। think people आपको learn क्या to लगता है कि लोग accommodate संघर्ष and को reduce conflict? समायोजित करना और कम करना कैसे सीखते हैं? Actually, as I mentioned, in the past, now, for example, First World War, Second World War, तो जैसे कि आप then पिछली शताब्दी में देखें कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध United जो Nations, हुए, उसके बाद then फिर particularly संयुक्त राष्ट्र की European Union, स्थापना हुई you see, और उसको खास करके जो यूरोपियन यूनियन उसके according to विकास हुआ, reality, उसका now we have to live together. और सत्यता के बारे में देखें Oh, तो हम सभी को एक साथ रहने की ज़रूरत है। so अगर I हमें साथ ही believe साथ रहना है तो शांति से हमें रहने की ज़रूरत है। European Union. तो मैं यूरोपियन यूनियन है उसका मैं बहुत ज़्यादा एक And प्रशंसक हूँ। तो जहाँ तक फिर आर्टिना Cool. और डिकोल Previously, इनके बारे में अगर विचार करें Germany, तो प्राचीन समय में फ्रांस और जर्मनी but एक new दूसरे के circumstances, कट्टर शत्रु थे। they developed this European Union. Wonderful. फिर परिस्थितियाँ बदली, फिर परिस्थितियाँ बदलने के बाद एक यूनियन, एक संघ की Latin स्थापना हुई। America and Africa now should think more union. उसके बाद भी देखें कि लैटिन अमेरिका, One's own nation, one's own continent. So, the reality, not isolated. Everything तो जहाँ तक एक रियलिटी के बारे में बात करें, वो अलग नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। of humanity. और जहाँ तक एकता की भावना है, मानवता की एकता की भावना है, As I वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। European Union, one example, and then United Nations also, you see, one example. So, I always optimistic. मैं हमेशा ही आशावादी रहा हूँ। What's the global problem? You see the और जो हमारी वैश्विक and we have जो समस्याएं हैं, you see that तो उसके आधार पर भी एक मैं आशावादी रहा हूँ कि हमें भी इन सभी चुनौतियों के साथ रहना है, इनके साथ जीना है। okay. Yes, sir. The next question is from one of our staff members, Guneet Sethi. तो अगला प्रश्न गुनीत कुमार सेठी, Thank you, sir. गुनीत कौर Your सेठी। Holiness, my question to you is, how तो important परम is पावन the जी, role मेरा of प्रश्न है workshops कि and कार्यबल seminars के बीच for सामंजस्य और organizations समन्वय in order to सुनिश्चित establish करने के लिए proper कार्य systems संगठनों में that ensure मानसिक harmony and परिपक्वता और coordination among सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए कार्यशालाओं और संगोष्ठियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? Now, as I already mentioned, education more, education, wider perspective, and realistic. तो जैसा कि मैंने कहा interest. कि जो हमारी शिक्षा है, तो शिक्षा एक बृहद दृष्टिकोण के साथ और लंबे समय तक उससे क्या लाभ हो सकता है, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। स्कूल के अलावा भी Discuss. लोगों को समय समय पर वार्ता करनी चाहिए। Have और इसके अलावा जो मीडिया है उसका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। जो हमारे मानव हैं, जो मौलिक मानव मूल्य हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा things राष्ट्र, are changing. मेरा देश, So I'm क्योंकि quite hopeful. जो परिस्थितियाँ उसमें परिवर्तन हो रहा है Things are और मैं इन सब के लिए काफ़ी आशान्वित हूँ। reality. You see, we have to think more. और जो वास्तविकता है उसके आधार पर हमें एक बृहद रूप से सोचने की ज़रूरत है।
एक हमें संकुचित विचारधारा नहीं रखनी है कि ये मेरा राष्ट्र है, मेरा समुदाय है। इनसे हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है। Political party, my party. तो जैसे उदाहरण के रूप में जो राजनीतिक दल होते हैं, Small तो thinking. उनकी इतनी सोच होती है कि मेरी मेरी ये पार्टी, So तो उनकी सोच जो है बहुत I छोटी think होती है। now the reality tell us now we have to think. तो हमें जो जो इन ये जो परिस्थितियां हैं, ये सिखाती हैं कि हमें एक बड़े रूप में सोचना है, Happy one world. Happy human. और इसके लिए हमें एक सुखद विश्व की स्थापना करना है, सुखद मानवता की स्थापना करनी, ऐसे हमें विचार करना चाहिए। Now, our student from our law program, Ridhima Singh. तो अगला स्टूडेंट रिद्धिमा सिंह। My question to Your Holiness is, तो परमपावन जी, मेरा प्रश्न है कि पश्चिमी लोग कहते हैं कि योग्यतम का जीवन रहना समाज का आदर्श है, जीवित रहना समाज का आदर्श है। क्या इसका मतलब यह है कि कमज़ोर और वंचितों के लिए कोई जगह ही नहीं है? कहते हैं कि जो परिश्रमी लोग हैं वही अपना सर्वाइव कर सकेंगे, तो कमज़ोर हैं वो कैसे रह सकते हैं? Bronze, old generation. So तो जहाँ तक ये जो विचार था वो डार्विन का, तो डार्विन एक पुरानी पीढ़ी से संबंधित थे। तो जब से डार्विन आए, much change. So now तब से जो परिस्थितियाँ उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो आज के समय में हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें विचार करने की ज़रूरत है। जितने भी लोग हैं, 7 अरब के आसपास लोग हैं, हम सभी को एक साथ साथ रहना है, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के हमें साथ जीना है। इस प्रकार का हमारा विचार होना चाहिए। I believe. Okay. तो ऐसी मेरी मान्यता है कि हम सभी को Today, this conflict continues to persist. You know, even in educational institutions, we say work hard, the fittest, the best. तो हम लोग हमेशा जो शिक्षण संस्थान हैं उसमें भी कहते हैं कि हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, उसी के लिए है जो ज़्यादा कर लेता है। तो ये छोटे संस्थानों में भी कहते हैं। इसको अगर बड़े रूप में भी देखें, शहरों में भी देखें, तो सभी में भी देखें, बड़े बड़े हॉल, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। Identical, everybody is expected to behave in a particular manner. This is really reducing तो सभी लोग एक of the universe. How do we तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं, इनसे हम कैसे एक से परे जा सकते हैं? Now, according to reality, we have to think. तो जैसा कि मैंने कहा कि सत्यता के माध्यम से देखें, तो हमें समाज के लिए, हमारे जो ग्रह हैं, जो द्वीप हैं जहाँ हम रहते हैं, उसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि केवल और केवल अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए ही सोचें। We have to think more broad. तो वास्तविकता तो यही है कि हमें और एक बड़े रूप में सोचना है, हमें एक संकुचित विचारधारा नहीं रखनी है। These are तो हमारी जहाँ तक प्रतिस्पर्धा है, आपस में the particular circumstances. जो प्रतिस्पर्धा की भावना है, Already is change. उसको हमें त्यागने की ज़रूरत है। We have to think, as I mentioned earlier, oneness of all 7 billion human beings. तो हमारे जो 7 अरब के आसपास के लोग हैं, उन सभी के बारे में सोचना है और हमें साथ साथ रहने की ज़रूरत है। We should try to create happy world, one world. और कोशिश हमें करनी चाहिए कि एक सुखद विश्व की हम स्थापना कर सकें। ये हम सबका एक उद्देश्य होना चाहिए। तो अगला प्रश्न सिराज गांधी का। तो परमपाल जी, मेरा प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि कर्मचारियों की नैतिकता के बारे में बात करने वाले संगठन पर कोविड-19 का प्रभाव पड़ा है? जब कुछ संगठन बहुत कारगर हैं, अन्य जैसे मेला ढोने की तरह हैं, काम कर रहे थे। समाज में इस तरह के द्वंद्व से कोई कैसे निपट सकता है? In human history,
you see, people thinking more broad way, but at the same तो time, जैसे कि आप मानव इतिहास में small देखें group of तो people कुछ who जो लोग ऐसे भी थे their own जो एक बड़ी outside सोच रखते थे, interest. और कुछ समुदाय या कुछ For संघ ऐसे example, भी थे, कुछ लोग there ऐसे was थे कि जो केवल और केवल अपने लोगों के बारे में ही सोचा करते थे। some small number who just think तो themselves. कुछ लोगों की इस विचार ये भी है कि केवल केवल अपने बारे में सोचते हैं। As I already mentioned, and media, और जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे मीडिया है उसका I think बहुत बड़ा योगदान है। some human being who live another satellite. तो कोई अन्य लोग, अन्य जीवधारी जो दूसरी दुनिया में रहते हैं, अन्य ग्रह पर रहते हैं, Few decades come back here. They और certainly कुछ शताब्दियों के much change. बाद अगर यहाँ आते हैं, यहाँ आकर के देखेंगे तो निश्चित रूप से उनको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा कि हमारी जो सोच है बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन आया, एक दूसरे की मदद करना हमने प्रारंभ कर दिया है। ऐसा इस प्रकार की मेरी मान्यता है कि निश्चित रूप से यहाँ लोगों में परिवर्तन आया है। Doctors, nurses, तो इस बीमारी कोविड को में देखें, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, अन्य संस्थान wonderful. सभी ने सबका ध्यान रखने की कोशिश की। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कार्य हुआ। You see, our life, everything go well. Then we just relax. When things more serious, then thinking more serious. So this illness also now bring us to think more serious. And तो जहाँ तक ये जो बीमारी थी वो वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। तो इस बीमारी के माध्यम से हम लोगों ने भी गहराई से सोचना शुरू किया और लोगों के साथ जुड़ सके। Integrated program student, Chelsea. तो अगले प्रश्न चेल्सिया Thank you, sir. मोरिया। My question to Your Holiness is personal ethics तो परम पावन influence जी, how a person will act व्यक्तिगत in an नैतिकता प्रभावित organization. करती है कि The कोई culture व्यक्ति of an किसी संगठन में organization कैसे is कार्य strong करेगा। if it किसी benefits संगठन की or the प्रकृति organization to उन लोगों establish द्वारा its ethical अत्यधिक values. प्रभावित होती है जो Can you इसके share your नैतिक views मूल्यों on को this? स्थापित करने की स्थिति में होते हैं। क्या आप इस पर अपने विचार साझा कर सकते हैं? now, as I already mentioned, you see, last few decades, I think our thinking much change. So तो पिछली शताब्दियों में अगर देखें now तो thinking बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। for common interest is really much grow. Although और लोगों में जो उनकी जो विचारधारा है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। और समाजवाद की जो विचारधारा है, समाजवाद के जो विचार है उसमें लोगों की सोच बड़ी है। now even nation thinking oneness, so European Union. things तो like that. यहाँ तक कि लोगों के अलावा भी राष्ट्रों की सोच बड़ी है। जैसे कि यूरोपियन संघ को भी देखें, उसमें भी संगठित हुए लोगों के बारे में सोच विचार बदली। तो इस प्रकार के अगर चीज़ घटित होती है तो एक बदलाव का एक अच्छा संकेत है। His Holiness proud that you said in the beginning that you've been here in India for so many decades and you call जैसा कि yourself परम पावन जी आपने son of India. कहा कि We're really भारत proud में that पिछले though you कई were born in दशकों से India, रह रहे हैं, you call yourself तो son of आप India. अपने आप को भारत का पुत्र भी कहते हैं, हालांकि आप तिब्बत में पैदा हुए हैं। We are so proud of तो it. आप क्यों अपने आप को भारत का पुत्र कहते हैं? हालांकि हम लोग बड़े गौरवान्वित हैं कि आप अपने आप को भारत के पुत्र मानते हैं, लेकिन कि आखिर क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? Broadly speaking, I think much change. तो
तो जहाँ तक सोच विचार के बारे में देखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। Son of India, Garagi, Sebu in Soyati, Kim Karin, Grand of the Sumana. Garum Chinam, son of India. Oh. Yes. Now, oh, I born in Tibet. तो मैं भारत में जन्मा हूँ। और तो जहाँ तक तिब्बत की संस्कृति को देखें तो वो भारत के बौद्ध धर्म पर आधारित है और ख़ास करके नालंदा की परंपरा उस पर आधारित है। From my childhood, I studied important text. All तो बचपन से ही मैंने जो भी भारतीय विद्वानों के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की गई है उनका मैंने अध्ययन किया। Due to political difficulties, लेकिन राजनीतिक मुश्किल हालातों की वजह से मैं भारत में शरणार्थी बना। मैं भारत सरकार का अतिथि हूँ। India's freedom. और मैं वास्तविक रूप से भारत की जो स्वतंत्रता है, भारत की जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उसका एक प्रकार से मुझे भी एक स्वतंत्रता मिली। इसलिए मैं अपने आप को भारतीय मानता हूँ क्योंकि मुझे स्वतंत्रता मिली, मुझे जो अभ्यास करने की आज़ादी मिली। And then, as I mentioned earlier, I'm longest guest of. और जैसे कि शुरुआत में ही कहा कि मैं भारत सरकार का सबसे दीर्घकालिक अतिथि हूँ। You see, I deeply feel I'm culturally, through many reasons, I really. और बहुत सारे कारण हैं कि जिसकी वजह से मैं अपने आप को भारतीय कह सकता हूँ, भारत का पुत्र कह सकता हूँ। Honored, sir. We are really honored that you consider, तो हम लोग वाकई गौरवान्वित हैं कि आप भी अपने आप को भारत का पुत्र मानते हैं। The second last question to you, sir, from our institution, and I think from everybody who is listening, is on human care for non-humans. I mean, जो प्रश्न है कि जो मनुष्य का ध्यान नहीं देते हैं, उस विषय में प्रश्न है। क्योंकि भारत में अगर देखें कि लोग चिड़ियों का भी ध्यान रखते हैं। कोविड के समय में देखा कि लोग बीज इत्यादि भी उन्होंने बाहर रखे जिससे कि वो खा सकें, कुछ दाने खा सकें। तो भारत जो है विश्व को कैसे ज्ञान दे सके, केवल मानवता के लिए नहीं, हर जीवधारी का हित कर सकें, चाहे वो पेड़ हों, चाहे पौधे हों, चाहे जो भी हो, उन सभी के लिए भारत कैसे एक ज्ञान दे सकता है, सिखा सकता है कि I already mentioned many people, I think including scientists, in the past, just thinking was short-sighted. Then, you see, they consider India something backward. Now that way of thinking.
तो लोग पहले जैसा सोचते हैं कि भारत के जो है वो पिछड़ा हुआ है, काफ़ी पीछे है। लेकिन आज के समय में देखें कि इस ऐसा नहीं है। भारत की जो सभ्यता है दूसरे देशों को प्रभावित कर रही है। जहाँ तक मनोविज्ञान की बात करें, ये भारत की जो व्यवस्था है, Now more and more scientists pay more तो आज के समय में बहुत सारे वैज्ञानिक लोग इसके प्रति ध्यान दे रहे हैं, मनोवैज्ञानिक प्रति ध्यान दे रहे हैं, आंतरिक मूल्यों के प्रति ध्यान दे रहे हैं। तो ये भारत की एक परंपरा है, आंतरिक मूल्यों की परंपरा है। just materialistic sort of thinking. और तो प्राचीन समय में केवल और केवल भौतिक विकास के बारे में सोचा करते थे, लेकिन अब जो हमारे मन है, जो हमारी भावना है, इसके बारे में चिंतन प्रारंभ कर दिया है। इस वजह से भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, इसमें बहुत बड़ी क्षमता भी दिखती है, इसमें बहुत बड़े अवसर भी दिखते हैं कि इसके माध्यम से हम विश्व को सिखा सकते हैं। तो परम पावन जी, आज का ये अंतिम प्रश्न होगा कि जो हमारे युवा छात्र छात्राएं, उनके लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन को अच्छा कैसे बना सकें, बेहतर जीवन कैसे जी सकें, उसके लिए कोई आपका संदेश? China, India, two most popular. जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि भारत और चीन सबसे बड़े आबादी वाले राष्ट्र हैं। All these centuries, genuinely democratic sort of country. और ये जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, तो इनमें जहाँ भारत में अगर देखें तो बहुत बड़ा राष्ट्र है, धर्म की पूर्णतः स्वतंत्रता है। About Indian culture. और आज के लोग भारत की संस्कृति, भारत की कला के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। Now, younger generation और मैं मानता हूँ कि जो हमारी आधुनिक पीढ़ी है, भारत की आधुनिक पीढ़ी है, these events उनको जो हमारे भारत के मूल्य हैं and उनके बारे में निश्चित रूप से सोचेंगे और उनके जो अपने इन प्राचीनों को, जो संस्कृति कला को देखेंगे, तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। Thank you. We are really honored, delighted, and blessed. तो परम पावन जी, Presence. आज आपके प्रवचन सुन के हम बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त हुए हैं। Because your blessings will probably go a long way. और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हम सभी को आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हम लोगों का जीवन सुखद और सफल बनेगा। We have learned तो परम पावन जी, वास्तव में हम सब के लिए बहुत बहुत लाभ हुआ है for us. और आपने बहुत सारे चीज़ों के लिए आपने जोर दिया, मनुष्यता के लिए बारे में कहा, और आपने कहा कि भारत विश्व के लिए कि हम सामंजस्य में कैसे रहें, हम किस प्रकार से लीडरशिप का रोल कर सकें, इसके लिए आपने मार्ग के बताया है कि करुणा और अहिंसा के माध्यम से लोग अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं, और किस प्रकार से अहिंसा और करुणा जो हमारी संस्कृति है दूसरों लोगों को भी एक मार्ग दिखा सकता है। और परम पावन जी, आपने जो कि यूरोपियन यूनियन, जर्मनी और फ्रांस है, तो उनके बारे में उदाहरण दिया कि वो एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, लेकिन आज वो दोस्त बन गए हैं। तो लोगों के दृष्टिकोण को बदल पाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आप अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो निश्चित रूप से अपने जीवन के मार्ग को बदल सकते हैं, अपने विचारधारा को बदल सकते हैं और साथ साथ रह सकते हैं। Consideration for other individuals, not just और आपने दूसरों के हित के बारे में भी बात की, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, जाकर के पेड़ पौधे, पर्यावरण, इस सब के बारे में कहा। और आपने कहा कि सभी लोग इस दुनिया में रह सकते हैं, सभी एक साथ साथ रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं, विभिन्न परंपराएं हैं। हम तो परम पावन जी, हम आपके इस
मैं अपने रोहतक ये से यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी की तरफ से इस आप सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी लोगों की तरफ धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत ही गौरवान्वित हुए, हम बहुत ही खुश हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। I really feel great honor, you say, to talk with Indian friends. तो आज भारतीय मित्रों के साथ वार्ता करके मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं अपने आप को भारत का पुत्र मानता हूँ। I'm son of India, no question. तो इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है कि मेंटली मानसिक रूप से भारत का पुत्र हूँ और शारीरिक रूप से भी भारत का पुत्र मानता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अपने भारतीय भाई बहनों के साथ अपने विचारधारा को, अपने विचारों का मैंने आदान प्रदान किया। Thank you. आपका धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।